वेडनेसडे की रात वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के बीच हुआ ये सो कॉल्ड ब्रॉल अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया है, जिसकी कहानी बयां कर रही हैं इंटरनेट और मीडिया चैनल्स पर तैर रही ये आवाजें, जिनमें से एक आवाज शाहरुख खान की बताई जा रही है। No, I think they should apologize to me for behaving the way they behave. गुस्से में कहीं ना कहीं कुछ तो कहा होगा, लेकिन वो लोग भी बहुत बदतमीजी से बातें कर रहे थे और मैं अकेला था, तो वो कुछ 20-25 उनके ऑफिशियल्स थे extremely disturbed that they should manhandle children in the name of security, and there is no right to touch little girls who are not even 13 years old physically. शाहरुख ने ये सफाई वानखेड़े स्टेडियम में उन पर एमसीए के ऑफिशियल से मिसबिहेव करने का आरोप लगने पर दी है। वो किसी को गालियां दे गए हैं, ऐसा ऑडियो एमसीए ने Yeah, no, I will not deny the fact that I was abusive. It's not something you don't need rocket science to know that. But it started when this gentleman from behind came and abused me in Marathi first. And then I told him, speak with me in Hindi. So he said something which was, I think in today's time and age in our country, it is something that should not be spoken. And that's when I told him, I said, this is my city, my country, don't speak to me like this. And I don't even want to repeat because it will get shades which are not right. And he must have said it. And they were all very aggressive. All of them came down, 30 of them, physically charging like this. And I don't know, I'm not trying to behave like a macho guy here. But it's not nice when I've taken 30 children with me, little boys and girls, and 40 grown-up people come aggressively towards me. I will stand my ground. And I think it was completely correct on my part to stand there and let them know that they can't just physically push anyone out of there. There was nothing illegal. I was not on the pitch. I know the rules. We go in Kolkata, we play on other grounds. You're not allowed to go in the pitch after the match. And so we were not there. The pitches were covered. We were on the side. The kids were playing there. And I think the way that security gentleman came and pushed the little girls, I think that was completely wrong. And that's what I told him. And yes, then after that, once this gentleman abused me, yes, I did abuse. And I don't think, that's an anger. And they were being aggressive, so I became aggressive back. And when I hear them say what they're saying, I truly believe, with all due respect to, their spokespeople, I think they don't need to have this high-handed, holier-than-thou attitude about how I behaved. I think they behave extremely irresponsibly. एक तरफ शाहरुख खान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगे इल्जामों पर सफाई दे रहे थे और तभी ये अपडेट भी सामने आ गया कि आखिरकार एमसीए ऑफिशियल्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मरीन लाइंस पुलिस स्टेशन में शाहरुख के खिलाफ धारा 323 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने शाहरुख पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ गाली गलौज करने और एमसीए ऑफिशियल्स को धमकाने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में यहां तक कहा गया है कि किंग खान जब मैच खत्म होने के बाद वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे तो वो शराब के नशे में थे। वहीं शाहरुख ने इस पूरे ड्रामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब के नशे में होने की बात से साफ इनकार किया है। I've been hearing some of them say what they're saying, that I was under the influence of alcohol. I come from home. I don't drink except socially. I think it is only extremely fashionable sometimes that a celebrity gets into an argument. The first thing to say is that so and so was drunk. I wasn't. साथ ही ये भी कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि माफी तो उनसे मांगी जानी चाहिए। No, I think they should apologize to me for behaving the way they behave. I don't think they're extremely high-handed. वैसे ये घटना उस वक्त हुई जब बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की टीम क्रिकेट के मैदान पर अपनी बादशाहत कायम करने की तरफ बढ़ रही थी। वेडनेसडे को हुए इस मैच में 2020 की कोलकाता टीम ने मुंबई की टीम को हरा दिया। इस मैच के दौरान तो किंग खान स्टेडियम में नहीं थे, पर मैच में अपनी टीम को जीत के दरवाजे पर देखकर किंग खान मेहमानों के साथ स्टेडियम में पहुंच गए। इसी दौरान वहां मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स ने शाहरुख खान के साथ आए मेहमानों को मैदान में घुसने से रोका। किंग खान पर आरोप है कि इस बात से उन्होंने गुस्से में आकर न सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल से मिसबिहेव किया, बल्कि एमसीए ऑफिशियल्स को भी धमकाया। If he doesn't understand the game, he should not come here. It's better that. And anyway, if he doesn't come, still the game will go on. It's not worth reacting. We had BCCI officials with us. We had responsible police officers with us. We have our MCA officials with us. So I don't think I need to react to the Shahrukh's statement. शाहरुख के इस रवैये से नाराज एमसीए ऑफिशियल्स ने मामले की शिकायत पुलिस में की। वैसे इस मामले में पुलिस के दखल के अलावा अब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी एक्टिव हो गया है और राजीव शुक्ला ने कहा है कि वो दोनों पक्षों से बात करेंगे। मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से रिपोर्ट ले रहा हूँ, फिर मुझे फ्रेंचाइजी का भी वर्जन लेना पड़ेगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और फ्रेंचाइजी दोनों का वर्जन लेने के बाद क्या स्थिति है
और पुलिस का भी वर्जन आ जाएगा, इसके बाद मैं आपको इस पर बताऊंगा। वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां एमसीए ने शाहरुख पर मिसबिहेव करने का इल्जाम लगाया है, वहीं शाहरुख लगा रहे हैं एमसीए ऑफिशियल्स पर मैनहैंडल करने का आरोप। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एसआरके पर जो आरोप लगाए हैं, एसआरके ने एक एक करके उन सभी इल्जामों को खारिज कर दिया है। राइट फ्रॉम बीइंग ड्रंक टू फिजिकली अब्यूजिंग अ फैन टू ब्रेकिंग रूल्स ऑफ द क्रिकेट स्टेडियम। अब देखना ये होगा कि क्या एमसीए आने वाले दिनों में एसआरके की वानखेड़े स्टेडियम की एंट्री में बैन लगाती है या नहीं। विद कैमरा पर्सन शरद, दिस इज आरती दानी, ज़ूम मुंबई।